Today I have in front of me Miss Madhusnata Guha, who is faculty and manager of public relations for International School of Hospitality Management. Welcome to our show, ma'am. Thank you so much. Ma'am, you have been with this organization for how long now? I've been here for 4 years now. I'm working with ISHM since 2020. Okay, that's great. तो आप basically क्या कौन सा एरिया देखते हैं International School of Hospitality Management? As for students, I do take communication classes and a few aviation classes as well. Okay, okay. And I also do take care of the sales and marketing, that is the public relations section, the department of ISHM. अच्छा, आप एविएशन के क्लास लेते हैं तो वेर यू रिलेटेड विद द इंडस्ट्री? Yes, I used to work with Kingfisher Airlines as a cabin crew. Okay, that's great, ma'am. तो आप एक cabin crew थे. Yes. So what inspired you to become a cabin crew? I always wanted to fly. I always wanted to travel. अच्छा. So दुनिया घूमने का ख्वाहिश हो और इससे अच्छा नौकरी कुछ नहीं हो सकता. Okay, तो is this why today आज के ज़माने में many students, many youngsters in fact are looking for a career in the aviation industry? Yes, we do have many inquiries. We have many students who want to, aspire themselves or see themselves as a cabin crew or maybe work with the aviation industry. There are, I have been here for 4 years and I have seen the growth that the aviation industry is getting. Okay. Our students are also very nicely placed in different national, international airlines, and when we see them, when I see them personally, I feel so overwhelmed with the feeling that somebody is. And एक faculty होने के नाते आपको गर्व महसूस करता होगा बहुत सारा. बिल्कुल, बहुत ज़्यादा. तो मेरा एक सवाल होगा आपसे एक एयर होस्टेस या कैबिन क्रू बोलते हैं ना? Yes, cabin. उनको एक एयर होस्टेस या कैबिन क्रू होने के लिए व्हाट आर दी इनिशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 12 pass, that's it. But there is a but in this. जब भी आप कोई मैनेजरियल पोजीशन पे अप्लाई करना चाहेंगे आफ्टर बीइंग कैबिन क्रू फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, then you will definitely require a graduation. Okay. So 12 pass is the minimum qualification to become a cabin crew. अच्छा. But आप जब growth चाहेंगे अपने career में, so you have to have a graduation degree. तो इसका मतलब सपोज मैं 12 पास हूँ तो आपको do you require any extra certifications या training programs? Yeah, it is obviously an advantage or a star mark if you have one. अच्छा. Okay, like you can join the industry if you are a 12 pass candidate, but maybe after 7, 8, 9, 10 years you want to apply for a base manager position, then you will definitely with your experience have to have a graduation degree. So for that reason I believe that this course is very much into trend. The BBA aviation course that we have is very much in trend, and the people who are passing this course are getting better opportunities as well in international alliances, in airports. For being being a cabin crew, 12 pass is okay, you can join the industry, but for your growth you will be requiring a degree. To become an airport ground staff, the minimum qualification required is graduation. Okay. तो now I'll come to the another part of a question जो मुझे आपसे पूछना है कि what are the personal and physical qualities that are required for a student or for a youngster to become a cabin crew? Okay, so coming into the personal qualities that you are asking, there is something we call as soft skill. What is soft skill? The skills that we acquire from birth, जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ ही होता है. उसको हम लोग जब we make it, we polish it rather, अच्छा. तब वो बनता है हम लोग का एक पर्सनल क्वालिटी. जैसे किसी को डांस करना पसंद है, उसके घर पे कोई करता होगा तो वो उसके बर्थ में, उसके खून में होता है, लेकिन जब वो उसको पॉलिश करता है तो ही और शी बिकम्स अ डांसर, प्रोफेशनल डांसर, राइट? अच्छा. सो वैसे ही हम लोग बात करना जानते हैं, पर हम लोग मे बी किसी को इंग्लिश जानता है पर कुछ प्रॉब्लम्स है, इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाता, तो तभी वो हम लोग के पास आता है उस चीज़ को डेवलप करने के लिए. अच्छा. सो दैट इज़ अ पर्सनल क्वालिटी कि आपके पास ऑलरेडी वो बोलने का क्षमता है, पर उसको आप डेवलप कर रहे हो ऐसे कोर्सेज के साथ.
अच्छा. Now coming to professional, qualities, definitely a person should have a good personality. A person should be confident enough. A person, should have a proper English communication skill they must acquire. Again, coming to so that's I believe that will be all. A person who is proper to give an interview, can speak in front of an interviewer, can crack an interview for any which department they want. तो जैसे कि मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, हाइट का कुछ मैटर होता है क्या? जी बिल्कुल, ये आपका आई मिस्ड इट, आप पर्सनल जो क्वालिटीज आप बोल रहे थे उसी में आता है. सो पर्सनल क्वालिटीज में ये अगर आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास हाइट नहीं है वो एविएशन ज्वाइन नहीं कर पाएगा. अच्छा. बट देयर इज अ क्राइटेरिया. अगर किसी को एयर होस्टेस या कैबिन क्रू बनना है, लड़का हो लड़की हो, तो अ गर्ल शुड हैव एन हाइट ऑफ 154 सेंटीमीटर्स. ओके. And a boy should have a height of 160 centimeters. ओके. तो इसका मतलब रफली अगर हम इंचेस में देखें या फीट में देखें तो लड़कियों को 5 फीट 1 इंच के करीब होना चाहिए और लड़कों को 5 फीट 6 इंच के करीब होना चाहिए. For girls it is 5'1" minimum height, and for boys it is 5'6". अच्छा, तो अब इस बेसिस पर मुझे आपको एक, जैसे कि आपने बताया कि हाइट इज़ नॉट अ लीडिंग, लेकिन यहाँ मेरे को एक बहुत ही, आई वुड से इट इज़ अ सेंसिटिव क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन. स्किन कलर, ये क्या मैटर करता है? बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि मैंने कुछ यंगस्टर्स को ये बोला है, मैंने सुना है, मेरे कानों में आया है कि यार गोरा नहीं हूँ मैं डार्क स्किन हूँ, मैं हस्की स्किन हूँ, इंडस्ट्री में अच्छा नहीं कर पाऊँगा. आई फील इट्स रॉन्ग. आपको क्या लगता है? इट इज़ एब्सोल्युटली अ मिथ. ऐसा कुछ भी नहीं है. अच्छा. आपका पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए. आपके पास यू शुड नॉट हैव अ स्कार. जैसे कोई एक्सीडेंट में किसी को कोई दाग, मतलब स्कार हो गया, ऑपरेशन हुआ कोई भी विजिबल एरिया में. अच्छा. जैसे कि आपका फेस, नेक, योर आर्म्स एंड योर फीट. ओके, कोई भी विजिबल एरिया में कोई भी स्कार नहीं होना चाहिए, कोई टैटू नहीं होना चाहिए. अच्छा, टैटू भी नहीं हो सकता? टैटू इज नॉट अलाउड. Okay. अच्छा. एंड ऑल्सो अगर आपके पास पकड़ लीजिए बहुत सारे अभी टीनेजर्स है जो सेल्फ हार्म कर लेते हैं, कोई मार्क हो जाता है हाथ में या कुछ, तो ये सब अलाउड नहीं है. अच्छा, टैटू होना, अगर जैसे कि आपने बोला कि स्कार नहीं हो सकता है विजिबल एरिया में, तो अगर मेरा टैटू भी विजिबल एरिया में नहीं है, then it's absolutely fine. It's absolutely fine. जब तक वो दिखता नहीं है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, है. और अच्छा. अगेन कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट की स्किन कलर, तो स्किन कलर मैटर इसलिए नहीं करता है क्योंकि आप प्रेजेंटेबल होगे. व्हाट मैटर्स इज हाउ मच प्रेजेंटेबल यू आर. अगर आप प्रेजेंटेबल हो, एंड इफ यू आर एन अफ्रीकन, हाउ वुड यू हेल्प विथ योर स्किन कलर? दैट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट बी अ कैबिन क्रू. Of course. You should have a good personality to be one. You have to have good communication skills. You should be confident enough, and the height criteria should be maintained. That's true. Thank you ma'am for this wonderful insight. जैसे कि मुझे और एक सवाल आपसे पूछना है कि आपका प्रायर एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ इंसिडेंट which you would like to share with our youngsters? When we talk about a cabin crew, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि मुझे दुनिया घूमना था इसलिए मैं कैबिन क्रू ज्वाइन की. मैंने क्लास 12 में जितना पढ़ाई किया उससे ज़्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके इतना मोटा मोटा बुक्स मुझे पढ़ना पड़ा था. अच्छा. वाई? बिकॉज अ कैबिन क्रू, गर्ल बॉय व्हाटसोएवर इट इज, आपको फ्लाइट के जो 320 पैसेंजर्स होंगे प्लस खुद का, पायलट्स का, सबका जान आपके हाथ में होता है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन. राइट. तो आप फर्स्ट एड भी जानते हो, आप सेफ्टी भी जानते हो, आप सर्विस करना भी जानते हो, आप अच्छे से बात करना भी जानते हो, एंड दैट व्हाट मेक्स अ कैबिन क्रू. Okay. So it doesn't, coming to your question is that, the experience that I had is, there was a bird hit. Okay. What is a bird hit? That whenever a flight is, taking off, there are chances when a bird who is flying might just hit the front mirror of the flight. अच्छा. Okay. So जो pilots के लिए बहुत ज़्यादा या flight के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है. So luckily we just took off जब ये bird hit हुआ, in the
प्रायर फ्रंट पोर्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट, पर उतना कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ था, सो वी कुड जस्ट डू एन इमरजेंसी लैंडिंग ऑन द एयरपोर्ट इटसेल्फ। अच्छा। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि एयरपोर्ट का बाउंड्रीज क्रॉस करने के बाद अगर बर्ड हिट होता है तो इट बिकम्स अ वेरी रिस्की अफेयर फॉर द पायलट्स टू टर्न द फ्लाइट एंड लैंड अगेन। सो मेरे साथ ये एक छोटा सा हादसा हुआ था, बट अगेन इट्स पार्ट ऑफ द एंटायर जर्नी एंड आई रियलाइज्ड इट। थैंक यू मैम। आई बिलीव और ये आपका ये सब एक्सपीरियंसेस ही आज के डेट में हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनको इंस्पायर करेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमारे हर एक बंदा, कोई अगर डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शेफ़ बनना चाहता है, कोई एक मिक्सोलॉजिस्ट बनना चाहता है, वो आज के ज़माने में, बिकॉज यंगस्टर्स आर टुडे आर वेरी प्रोफेशनल, वेरी वेरी प्रोफेशनल, वो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू देयर माइंड इज मेरे को रिवॉर्ड क्या मिलेगा, what are the rewards, what are the plus points of this career aspect. So as an air hostess or as a cabin crew, what can you tell our youngsters or our viewers, what are the rewarding points, what are the plus points? See, I would say, because I myself I'm from this industry, so मेरे लिए एक चीज़ जो हमेशा बच्चे मुझसे पूछते हैं during counseling sessions और during classes also, कि मैम सैलरी क्या रहता है। सो ये इंडस्ट्री में बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हो। आई विल नॉट मेंशन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सैलरी दैट अ कैबिन क्रू गेट्स, इट डिपेंड्स ऑन एयरलाइन, वो तो डिफर करता है एब्सोल्युटली। बट जो सैलरी आपको ग्रेजुएशन के बाद इस एयरलाइंस से मिलेगा, प्लस उसके साथ आपको घूमने का मौका मिलेगा, उसके साथ यू कैन मीट द सेलिब्रिटीज। सो ये सब जो पर्क्स है, ये सब जो एडवांटेजेस मिलता है, वी हाईली डाउट दैट हॉस्पिटैलिटी छोड़ के कोई भी और इंडस्ट्री में मिलता होगा। मेरे को अगर सच बोले तो मेरे को अगर कोई बोले कि तुम्हें एक दिन के लिए पेरिस जाना पड़ेगा, पेरिस जाके फिर पेरिस में एक दिन रह के फिर वापस आना पड़ेगा, आई वुड एंड गेट पेड फॉर इट, गेट पेड फॉर इट एज वेल एज। सिर्फ पेरिस क्यों, आप पेरिस जा रहे हो, पेरिस में जाके आप ब्रेकफास्ट करो, देन यू मे बी फ्लाइंग टू कनाडा एंड हैविंग अ लंच देयर, देन यू कम बैक टू इंडिया एंड हैव योर डिनर। सो इससे बेहतर क्या हो सकता है? मैंने टैगलाइन ये हो सकता है कि वांट अ करियर वेयर यू हैव lunch in London and have dinner in Milan. This is the career for you. Absolutely. Thank you, ma'am, for your very, very valuable insights, and I hope and thank you for, first of all, thank you for taking time off your busy schedule. And मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ जानकारी मिला है in fact, and please I would request all of you to stay tuned. अगर आपको कोई भी हमारे इस वीडियो पर कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। अगर आप कुछ टॉपिक पर आप चाहते हो, आप अगर सोचते हो कि मुझे ये टॉपिक पर कुछ जानना है, प्लीज़ ऑल्सो डू मेंशन इन दैट कमेंट सेक्शन बिलो। वी विल गेट बैक टू यू। हम लोग आपके पास वापस आएंगे विद अनदर वीडियो। Please stay tuned. Please follow us on all our social media handles, be it Facebook, be it Instagram, be it YouTube. And at the end of the video, please feel free to contact us for any further details regarding whatever questions you have. Thank you again and have a nice day.